Welcome to Zen Study. My name is Naval, and today we are going to discuss one very contemporary issue. Friends, as you know, India is celebrating Mahakumbh. It's a festival which has happened after 144 years. That's why it's called Mahakumbh. वैसे तो कुंभ हर एक 12 सालों पे होता है, लेकिन इस बार ये फेस्टिवल 144 ईयर्स के बाद हुआ है, इसीलिए इसको महाकुंभ बोला जा रहा है. पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड आर कमिंग टू इंडिया टू टेक अ होली डिप. इट्स द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ ह्यूमैनिटी एनीवेयर एल्स सीन इन द वर्ल्ड. कुंभ मेला is the largest gathering of humanity. Millions of people from around the world are coming to take holy dip. And today in this class I am going to relate this topic with the historical significance and consequently to the 1857 revolt. कैसे इन दोनों में रिलेशन है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और कैसे 1800 में और 1900s में कैसे इसका प्रभाव पड़ा फ्रीडम स्ट्रगल पे. सो एज आई सेड, कुंभ मेला इज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ ह्यूमैनिटी. पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, irrespective of their caste, creed, sex and religions also, are taking holy dip. You know, the significance of this festival, एक सॉफ्ट पावर के तहत भी इंडिया in the global map is creating wave all around the world right now. Media from around the world are covering this event, so it's a huge event. Since I said you it's a once in a 144 years of festival, that's why it's called Mahakumbh. Although कुंभ इज सेलिब्रेटेड एवरी 12 years, बट सिंस एक ऐसा योग बना इस बारी जिसकी वजह से ये 144 ईयर्स के बाद सेलिब्रेट हो रहा है, इसीलिए इसको महाकुंभ बोला जा रहा है. नाउ वी विल डिस्कस द हिस्टोरिकल टेल्स. कुंभ मेला हिस्टोरिकल टेल्स. सिंस द कुंभ मेला इज ऑफिशियली अंडरवे इन प्रयागराज, अभी चल रहा है प्रयागराज में. मोर देन 600 million पीपल आर एक्सपेक्टेड टू अटेंड दिस फेस्टिवल बिकॉज इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी. इट इज हैपनिंग आफ्टर 144 years. सो पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, more than 50 plus nationals are coming to India to celebrate this festival of humanity. But I am going to relate this topic from your history and historical point of view. How? See, decades ago, Kumbh was very different, which I am going to show you how. See friends, at one point of time, it was a revenue source for Britishers, a hub for nationalism and base for revolution. ये कैसे है वो अभी आप देखेंगे. Let's go back to 1800s. 1800s was the time when British East India Company was formed, and that was a time when East India Company took control of the Prayagraj. Sorry, my mistake. It was a time when East India Company took control of the Prayagraj, not East India Company formed. Okay. In the middle of that century, they began noticing something about the city. A fair and मेला every 12 years. तो जब ब्रिटिशर्स प्रयागराज में आए तो उन्होंने एक चीज को नोटिस किया कि हर एक 12 साल के बाद कोई फेस्टिवल और मेला ऑर्गेनाइज हो रहा है. तो उन्होंने सोचा ये तो एक ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, एक टैक्स कलेक्शन के लिए.
क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पे गैदर हो रहे थे, तो उन्होंने उसको एक रिलीजियस सेंटिमेंट को ना देखते हुए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी उसमें ढूंढने की कोशिश की। ओके, द ब्रिटिशर्स डिड नॉट केयर अबाउट द रिलीजियस sentiments or significance. All they cared was about business opportunities. Like I said, they were not concerned about the religious significance of Indians. They saw a great opportunity in collecting revenue out of this fair or Kumbh Mela, because millions of people got together to take holy dip. So they thought of business opportunity. Every devotee at the Kumbh had to pay tax at the rate of 1 rupee per person. अब देखिए फ्रेंड्स, ब्रिटिशर्स ने सोचा कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बिजनेस के लिए, बिकॉज मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोग वहां पे जमा हो रहे हैं, तो क्यों ना उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाए, रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए। और उन्होंने 1 रुपए पर पर्सन का टैक्स लगाया, जो भी उसमें शामिल होने जा रहा है, जो भी उसमें अपने आप को शामिल करेगा। और हम ये तब की बात कर रहे हैं 1800s की, जब एवरेज जो डेट वाज द कुंभ टैक्स जो मैंने आपको बताया। और ये 1800s की बात है, जब इंडियंस की सैलरी डबल डिजिट में भी नहीं होती थी, यानी 4-5 रुपए लोग कमाते थे। उस टाइम ब्रिटिशर्स ने बोला कि आप 1 रुपए टैक्स देंगे, जो भी डिप करेगा, जो भी डुबकी लगाएगा, उसको 1 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा, जो बहुत ही बड़ी बात थी उस टाइम के हिसाब से, बिकॉज उसको कुंभ टैक्स भी हम बोलते हैं। और ये बड़ी बात इसलिए थी क्योंकि ये 1800s की बात थी, ये अभी की बात नहीं थी। अभी के लिए तो 1 रुपए कोई भी दे देगा, बट 1800s में लोग की सैलरी 4 रुपए 5 रुपए होती थी। उसमें से उसको 1 रुपए अगर बोला जाए देने के लिए, तो इट वॉज अ बिग थिंग। लाइक आई सेड, कुंभ टैक्सेस वॉज ₹1 पर पर्सन, मतलब 1 रुपए पर पर्सन के हिसाब से था। ब्रिटिशर्स ने एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली वहां पे पैसे कमाने की। एवरेज इंडियन की सैलरी उस टाइम पे डबल डिजिट में भी नहीं थी। लाइक आई सेड, दिस वाज अ क्लासिक केस ऑफ ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉयटेशन इन इंडिया। ये इंडियंस की रिलीजियस सेंटिमेंट के साथ आप बोल सकते हैं कि उनकी जो फीलिंग्स हैं उसका ब्रिटिशर्स ने कोई केयर नहीं किया और अपने फायदे के लिए टैक्स लगा दिया, मतलब रिलीजियस टैक्स भी इसको बोल सकते हैं। ये सारी बातें डॉक्यूमेंटेड है एक बुक में जो ब्रिटिश वुमेन फैनी ने लिखी थी, हु लिव्ड अराउंड प्रयागराज एट दैट पॉइंट। ये आपको बिल्कुल भी रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है और ना ही कहीं से पूछा जाएगा, बट जस्ट फॉर योर रेफरेंस। जब ब्रिटिशर्स ने टैक्स लगाना स्टार्ट किया कुंभ के मेले में, तो उसमें एक टाइप का टैक्स था बार्बर टैक्स। बार्बर, एज यू नाम से ही पता चल रहा है, बार्बर टैक्स ये था कि जो भी पिलग्रिमेजेस वहां पे आते थे, जो भी श्रद्धालु वहां पे आते थे, तो ऑफ कोर्स दे वांटेड टू शेव देयर हेड्स। ओके, देयर रिलीजियस जो उनका तौर तरीका था, जो रिलीजियस उनके जो रिचुअल थे, उनको फॉलो करने के लिए वो अपने जो हेयर हैं उनको शेव करते थे। तो उससे जो बार्बर हैं, वहां के जो बार्बर होते थे, उनको काफी मुनाफा होता था, काफी दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न मनी। सो ब्रिटिशर्स टैक्स देम एंड इट वाज कॉल्ड एज बार्बर टैक्स। Tax were also collected from business around the vicinity, especially barbers, because most devotees shaved their heads and barber had booming business. Like I said, 1870 में ब्रिटिशर्स कलेक्टेड 4200 रुपीज 4200 टैक्स, और उसका 1/4
1/4 was collected from barbers. ठीक है, तो जो मेजॉरिटी ऑफ टैक्सेस थे वो बार्बर पे कर रहे थे, क्योंकि ऑफ कोर्स उनको ज्यादा मुनाफा हो रहा था। तो ये एक कम्युनिटी थी, बार्बर की कम्युनिटी थी, हु वर ऑप्रेस्ड बाय ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग दिस टाइम बिकॉज ऑफ देयर टैक्सेशन पॉलिसी। 1880 में भी जो कुंभ मेला ऑर्गेनाइज हुआ था उसमें ब्रिटिशर्स ने 50,000 रुपीज कलेक्ट किए थे। सॉरी, लास्ट स्लाइड में ये 42,000 कलेक्ट थे, बट आपको फिगर्स याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। 1880 में ब्रिटिशर्स ने 50,000 रुपीज कलेक्ट किए थे टैक्स में, जिसमें से बार्बर्स ने करीबन 10,000 रुपए 10,000 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किया था। तो आप जान सकते हैं जो बार्बर की कम्युनिटी थी वो कितनी ऑप्रेस्ड थी बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग कुंभ मेला। एंड द ब्रिटिशर्स लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू ऑप्रेस देम। ब्रिटिशर्स के हिसाब से, उनके हिसाब से देयर वाज नो सिग्निफिकेंस, रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऑफ कुंभ अपार्ट फ्रॉम कलेक्टिंग देयर रेवेन्यूज, इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड एवरीथिंग, बट they were also initially frightened by the size of gathering, but gradually they started profiting from it. उनको मुनाफा होने लगा। प्रयागराज में एक ब्राह्मण की कम्युनिटी होती थी जिसको बोलते थे प्रयागवाल। वो गाइड करते थे, जो पिलग्रिमेजेस हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो जब आते थे उनको गाइड करते थे और उनको रिलीजियस लेसन्स भी देते थे, और उसके बदले वो मतलब दे ऑल्सो अर्न मनी। बट बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स इम्पोजिंग देयर टैक्सेस दे वर हार्म्ड। यू नो, प्रयागवाल ब्राह्मण्स, दे सफर्ड बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स टैक्सेशन पॉलिसी, बिकॉज वो टैक्सेशन उनको लगाते थे तो जो श्रद्धालु है वो उनको नहीं दान कर पाते थे और उनका इससे बहुत ही नुकसान हुआ था बिकॉज ऑफ दिस ब्रिटिश टैक्सेशन पॉलिसी। लाइक आई सेड, प्रयागवाल ब्राह्मण हु वुड गाइड द ब्राह्मण्स, दे वुड ऑल्सो गेट पेड फॉर इट। वो चार्ज भी करते थे अपना लेसन्स देने के लिए और अपनी गाइडेंस देने के लिए, बट बिकॉज ऑफ दिस टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स दे बिगेन, उनको काफी नुकसान होने लगा। ऑल्सो ब्रिटिशर्स ने जो है वो क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया था इंडिया में। अपने हिस्ट्री की क्लासेस जब मैं लूँगा तो उसमें और डिटेल में समझाऊंगा क्रोनोलॉजिकली वे में कि कब अलाउ किया था। अभी के लिए आप इतना समझ लें कि ब्रिटिशर्स ने अलाउ कर दिया था क्रिश्चियन मिशनरी को, तो वो भी कुंभ के मेले में आ जाते थे और ट्राई करते थे कन्वर्ट करने की जो हिंदू हैं, उससे भी प्रयागवाल ब्राह्मण्स को आपत्ति थी। Like I said, because Kumbh taxes were cutting their revenues, they were also not happy with the Christian missionaries because they tried to convert the pilgrimages. So there was great resentment among Prayagwal Brahmins because one thing led to other, and they thought that Britishers were trying to influence their religion, and they did not want any outside force to influence their religion. Now all this resentment and anger burst in 1857, 1857, which was also called as first war of independence by V.D. Savarkar. So उसमें तो अलग अलग कम्युनिटी के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, सबों के अपने इश्यूज थे, सबों के अपने एंगर थे, बट प्रयागवाल ब्राह्मण्स के भी अपने इशू थे और उन्होंने भी इस इवेंट का फायदा उठाया। ऑल दिस एंगर बर्स्ट इन 1857, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इन 1857 वॉर
Prayagwal Brahmins heavily supported this revolution because, of course, they were oppressed and they have their motives. Rani Lakshmi Bai aided Prayagwal Brahman in their fight and cause. Who came to their aid? Rani Lakshmi Bai. Okay. झांसी की थी वो. And when I will take my history class, I will detail you about her. So all these issue of Prayagwal Brahman culminated into their resentment against British in the 1857 war, and it broke a havoc. But as you know, the war was not successful, but it clearly gave Britishers a shock. 20th century में भी कुंभ का काफ़ी significance है. Mahatma Gandhi attended Kumbh Mela in 1918 and took the holy dip in Ganges. The Britishers were clearly worried about this visit because Gandhi was slowly but steadily becoming famous among the people all across India. So Britishers were worried that his popularity can harm them. 1942 में भी during Quit India movement, Kumbh happened, and it was a time when Second World War was also happening. The British restricted pilgrimages, okay, because of the traction of Quit India movement and wanted to avoid big gathering. तो फ्रेंड्स, मैंने इस लेक्चर में आपके साथ क्या डिस्कस किया कि कुंभ मेला जो है उसका सिग्निफिकेंस फ्रॉम 1800s टू 1900s कैसे ये सिग्निफिकेंट है थ्रू डिफरेंट टाइमलाइन. ब्रिटिशर्स ने एक कुंभ मेला के थ्रू एक अपॉर्चुनिटी को तलाश किया टू इंक्रीज देयर रेवेन्यू. दे बिगेन टैक्सिंग barbers, businessmen who participated in the Kumbh Mela. They even taxed pilgrimages, normal people who took holy dip in the Ganges. So all this resentment, and along with that the Prayagwal Brahmins, who were definitely oppressed by the Britishers because their businesses also suffered. They were not getting enough money because Britishers taxed common people and उनके पास उतना पैसा नहीं था उनको देने के लिए. And also Christian missionaries. So all this resentment culminated into 1857 war, and Prayagwal Brahman also participated in it. So friends, that's all for today, and in our upcoming classes I will discuss more about other contemporary issue, and detail you about various happening all around the world. So till then, keep learning, keep studying. Thank you.